Good evening, and I welcome you, students. What we were discussing in the last lecture, which has been uploaded already in the YouTube student. Soil is the most important part, and how the soil is formed was discussed last time, student, and it's always an important question. So we start our session with a question for the students. First question is on the screen, students. How the soil is formed? How the soil is formed, students? What is your answer, students? We have explained to you in detail about the formation of soil, and the book has also explained that what are the physical, chemical, and biological processes which produce fine particles called soil on earth. Important question, student. What happened? We told you about the parental rocks, student. Parental. What happened to them? They were broken. The parental rocks you have seen, student. They got broken. How they were broken, student? There were physical, chemical, and biological processes. Biological processes. What are those processes, student? What we discussed first, what happened, student? What are the factors which make up the soil? What was discussed? First, we talked of sun. What happens when sun shines in the morning? What happens during the day? Sir, it heats up the rocks. During the day, sun heats up the rocks. Then what will happen if the rocks are heated? What will be the result of that? If something is heated, what will happen? Rocks expand during the day. At night, what happens? The rocks contract. At night, cooling takes place. Cooling takes place. And the rocks will contract. Can you tell me what will be the result of? Try to understand only, nothing. Expansion and contraction. Cracks will be produced, student, in the rocks. Is that right? Yes, sir. What happens second? Water. What is the water? Water gets into cracks. What will happen? Water gets into cracks. Then what will happen, students? Then what will water do? It will widen the cracks. And if water is flowing, what will happen? So water will enter and fast flowing water. If water is fast flowing, what will be the result of that? It will cause a wearing. It will wear down the rocks. Okay? What is happening into smaller particles? What you are forming, students? Smaller particles. After that, what happened? Wind. Strong winds will do what? They will erode the rocks. Okay? And carry fine sand particles. Okay? From one place to another. From one place to another to form the soil. Anything else? Is there anything else, student? Important question for the papers coming. Living organisms. What will they do? What does the living organism do?
व्हाट डू यू सीन लीचन ग्रो, ठीक है, वो हरा हरा सा जो जम जाता है रॉक्स के ऊपर, वहां से फिर क्या होता है, प्लांटेशन ट्रीज वगैरह निकलते हैं, ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द रॉक। तो सरफेस के रॉक पे क्या हुआ, लीचन ग्रो हो गया, ठीक है, एंड कॉजेज इट टू पाउडर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ सॉइल एंड इट विल पाउडर द, ये पाउडर बना देता, पाउडर डाउन द रॉक, ठीक है, तो फॉर्म थिन लेयर ऑफ सॉइल। एंड प्लांट्स लाइक मॉस एंड रूट्स अदर ट्री आल्सो ब्रेक द रॉक्स। और क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हैं, मॉस भी है, ये सब दिखाई देती है ऊपर उगी हुई, ठीक है, द प्लांट्स द मॉस आर रूट्स ऑफ द ट्रीज, ठीक है, ये क्या करेंगे, दे विल ब्रेक द रॉक टू फॉर्म सॉइल। See that important thing. There are certain questions and they cover many things. तो समझ में आ गया हमें क्या होता है। Rock formation is soil formation is important because soil is where you grow your plants and everything. Everything is working, student. देखो सन ने अपना काम किया, पानी ने अपना काम किया, हवा चल रही है, विंड चल रही है, और उसके अलावा ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। हाउ मच हेल्प दे आर गिविंग टू अस, पहले हमें नहीं पता था, अब पता लग गया। ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार, व्हाट इज सॉइल इरोजन। स्टूडेंट you have 2 minutes to answer the question, what is soil erosion। इसको भी हमने डिस्कस किया। और सॉइल इरोजन क्या होती है स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ, Sir, रिमूवल it is the removal of top layer of soil. टॉप सॉइल, ठीक है, फ्रॉम दिस सरफेस, फ्रॉम दिस सरफेस स्टूडेंट। हाउ, कैसे जाएगी, बाई, कैसे चलती है, विंड्स ब्लो करता है, ठीक है, वाटर है, डिफॉरेस्टेशन है स्टूडेंट, ऐसे जो भी एक्टिविटीज हैं उसके क्या होता है, ये टॉप सॉइल जो होती है, इसके ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। तो होगा क्या स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग जो विंड्स होंगी वो क्या करेंगी, वो ले जाएंगी, फास्ट रनिंग वाटर होगा वो क्या करेगा, व्हाट विल हैपन, ये इट विल क्रिएट डिप्रेशन इन द सॉइल। और ये जो डिफॉरेस्टेशन जो होती है, आप कटिंग करते हो इतने प्लांट्स की, क्या होता है, तो यू आर कटिंग ऑफ ट्रीज, और क्या करते हो आप, ग्रेजिंग करते हो, ओवर ग्रेजिंग। तो इस तरह से और जो भी कुछ है पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, आप उनको बता सकते हो, आपके दिमाग में कोई है तो बता दो कौन कौन से किए थे और क्या किया था हमने। कौन कौन से किए थे स्टूडेंट्स। Sir, even modern farming methods cause soil erosion. चलो जो भी मेथड्स थे हमने बहुत सारे बताए आपको, सारे देख लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत बार आया, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग और यूजुअली व्हाट इज हैपनिंग, there's with the erosion of the soil, the soil will become barren and what will happen, that you won't be able to grow plants in them, plantation फिर कैसे करोगे, एग्रीकल्चर की बहुत इफेक्ट हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आंसर यू विल गिव स्टूडेंट्स, क्या क्या करोगे,
Sir, we should grow more and more plants and reduce cutting them. प्लांटेशन कर रही है आजकल, चल रहा है बहुत कुछ। और क्या करते हो, क्या क्या कर रहे हो स्टूडेंट? Sir, we would prevent use of fertilizers and pesticides. पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का यूज कम करेंगे, रिड्यूस करोगे। और क्या करोगे? एनीथिंग एल्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, लेट मी सी, आई विल हैव मेनी थिंग्स नाउ। देखो क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसके ऊपर काफी कुछ आपको दिखाया। सी द वेरियस मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो इट डिजर्व्स मोर अटेंशन स्टूडेंट। फर्स्ट यू आर सेइंग एफोरेस्टेशन, एक डिफोरेस्टेशन होता है, कटिंग द प्लांट ट्री, एफोरेस्टेशन। तो क्या करोगे? प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स, ऑलरेडी वी आर डूइंग इट। How much plantation is taking place in your country? What they are doing? Crop rotation हो रही है आजकल। What is crop rotation? क्या करते हैं स्टूडेंट? एक क्रॉप को दूसरे से रोटेट कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। Yes, sir. टेरेस फार्मिंग क्या करते हैं स्टूडेंट? ये टेरेस फार्मिंग करते हैं। What is the terrace farming student? जो बहुत सारे हिली एरियाज में है, उनमें क्या कर रहे हो तुम? यू आर प्लांटिंग ट्रीज इन देम। क्या करते हो? तो स्लोप्स ऑफ द हिल्स को काट के उसमें क्या कर रहे हैं? ये प्लांटेशन कर रहे हैं। डैम्स बिल्ड करते हो स्टूडेंट, तो डैम्स का क्या यूज है? व्हाट विल हैपन इफ डैम्स आर नॉट देयर? देखो फ्लड्स बहुत आते हैं, आपको पता है ना फ्लड्स। तो फ्लड से क्या होता है कि ये सॉइल खराब हो जाएगी, आपकी सारी कैरिड अवे हो जाएगी। शेल्टर बेल्ट्स है, एम्बैंकमेंट्स है, वन महोत्सव मनाया जा रहा है, ये सारी टेक्निक्स हैं। तो जैसे हमने व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, प्लांटिंग ट्रीज इन हिली एरिया, हिली एरियाज में ट्री को प्लांटेशन किया जा रहा है, देख रहे हैं? प्लांट ट्रीज इन हिली एरियाज, बिटवीन हार्वेस्टिंग वन क्रॉप प्लांटिंग द नेक्स्ट क्रॉप, क्रॉप रोटेशन कहते हैं इसको। तो फील्ड्स क्या करेंगे? लाई वेयर द फार्मर आइदर ग्रोज ग्रास और ग्रोज अदर क्रॉप्स टू प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम इरोजन। तो वो क्या करते रहते हैं फार्मर्स? ग्रास या कोई और क्रॉप्स को लगा देते हैं जिससे सॉइल इरोजन ना हो। And in hilly areas, farming is done by cutting steps on the slopes of the hill. Dams are built to prevent floods. The cover of plants and trees around the field also breaks the speed of the storm. तो ये क्या कर रहे हैं? बहुत स्पीड से विंड से अब चलती हैं, क्या करेंगी वो? प्लांट्स एंड ट्रीज को ब्रेक कर देंगी, अपरूट कर देंगी। तो क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं इनको, ठीक है? तो कवर कर रहे हैं इनको, द कवर ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। तो दिस in order to prevent the breaking of the trees from strong winds. तो बहुत strong winds चलेंगी, उनको stop कर लेंगे, ठीक है? तो ये some of the points हैं for how to prevent soil erosion is a important question student, note कर लो, ये आएगा पेपर में, बहुत बार आता है, favorite question। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अच्छा चलो, Yes, sir. let's proceed further. You are going to get all these video lectures also in the YouTube, so they will be with you forever, no problem. And we provide more information, whatever is in the books, try to get more data, latest. Bio geochemical cycle student. What do you mean by bio geochemical cycle? So what is happening? Chemical substances cycles the biotic and abiotic compartments of earth. You have seen there is a biotic and abiotic, two parts are there, right? Did we discuss? Yes, sir.
Living and non-living, air, atmosphere, water, they are abiotic, non-living. Sun energy. What is biotic? The animals, the plants, they are biotic parts. There is a constant interaction between the two. And bio, geo, and chemical, he is saying. What is happening? Chemical substances cycles the biotic and abiotic compartments of Earth. Chemical substances. Can you tell me what chemical substances you know? What chemical substances? They are cycling through biotic and abiotic compartments of Earth. The biotic compartment of Earth is biosphere and abiotic are the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. तो biotic जो है हमारा क्या है? बायोस्फीयर. और abiotic में क्या क्या आया स्टूडेंट्स? एटमॉस्फेयर. Yes, sir. ठीक है. ये जो वाटर है हाइड्रोस्फीयर. और कौन सा आया? लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर जो अर्थ की क्रस्ट है. तो बायो केमिकल सब्सटेंसेस दे आर साइक्लिक. ठीक है. ए पाथवे बाय विच केमिकल सब्सटेंस साइकिल्स द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपार्टमेंट्स ऑफ अर्थ. बायोस्फीयर एंड अबायोटिक कंपार्टमेंट्स. तो साइक्लिक का मतलब क्या होता है? इट विल गो एंड कम बैक. तो उसका अमाउंट क्या रहता है फिर? अमाउंट रिमेन्स द सेम बिकॉज देयर इज अ साइक्लिक प्रोसेस. जहां से चीज चली वहां वापस आ गई. तो ये एक फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन हमने दी. सेकंड हमें इसी सेम थिंग वी आर सेइंग bio geochemical cycle describes how a chemical substance travels through the earth's biotic and abiotic elements. तो केमिकल सब्सटेंसेस कौन से आप जानते हो जो जिनका मेन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं? कौन से केमिकल सब्सटेंसेस की बात चल रही है स्टूडेंट? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा साइकिल है? वाटर भी एक केमिकल कंपाउंड है, केमिकल सब्सटेंस है. व्हाट इज द फार्मूला वाटर? H2O. तो ये केमिकल सब्सटेंस है स्टूडेंट. तो यू नो कि इसे एक वाटर साइकिल भी चलता है. तभी तो वाटर सेम कांस्टेंट है हमारे. जितना भी वाटर है अभी तक है हमारे पास, कोई कम तो नहीं हुआ. Yes, sir. तो बायोटिक और बायोटिक एलिमेंट्स से वाटर जाता है और फिर आता है, जाता है, आता है. व्हेन एलिमेंट्स मूव टू एंड फ्रॉम द मेन सोर्सेज थ्रू ए नंबर ऑफ मैकेनिज्म दे आर रेफर्ड टू एज साइकिल्स. कौन कौन से हैं? जैसे वाटर है, ये कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन है. ये सब साइकिल्स चल रहे हैं. कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, sulfur, phosphorus, among these elements. These are required for the life to exist, and they are cycling through bio and biotic and abiotic components in which we are living. So on the screen, student, we are coming to very important cycle, water cycle. We are already having a lot of information about it. Water cycle is also known as hydrologic cycle. Hydrologic मतलब water is a geochemical cycle, describes the continuous movement of water on, above and below the surface of the earth. तो water जो है वो move कर रहा है students. Water is moving on, above and below the surface of the earth. कहाँ जा रहा है? ऊपर, सरफेस के ऊपर और सरफेस के नीचे भी. ये कंटिन्यूअसली साइक्लिक प्रोसेस में चल रहा है. वाटर साइकिल शोज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर. तो वाटर हमारा जो है स्टूडेंट, ये हमारी अर्थ है और विद इन द अर्थ मैं कह रहा हूं. ठीक है. और एटमॉस्फेयर है. और फिर ये वापस चल रहा. इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम. हर एक सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है. वी विल ट्राई टू मेक इट इजी एंड सी व्हाट इज हैपनिंग स्टूडेंट्स.
जो भी सिस्टम हमारा, हम देखेंगे उसको कैसे हम आसान कर सकते हैं। जो भी सिस्टम हमारा है, देखते हैं कैसे ये साइक्लिक प्रोसेस चलेगी, हाउ द साइक्लिक प्रोसेस टेक्स प्लेस। देयर आर मेनी प्रोसेसेस व्हिच आर इन्वॉल्वड। द लिक्विड वाटर इवेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर। तो लिक्विड वाटर जो है इट विल गो इनटू वाटर वेपर। ये वाटर लिक्विड है, इसकी वाटर गैस बनेगी स्टूडेंट। और ये क्या करता है, फिर क्लाउड्स बनाता है। और ये क्लाउड्स क्या करते हैं स्टूडेंट, दे प्रेसिपिटेट, ठीक है। और ये आपको रेन और स्नो जो भी फॉल होता है स्टूडेंट, ये मिलता है। इस तरह से साइक्लिंग प्रोसेस चलती रहती है। विल ट्राई टू सी पिक्चर्स ऑफ दैट। हियर इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। कैसे हो रहा है, यूनिट्स 1000 क्यूबिक किलोमीटर फॉर स्टोरेज एंड 1000 क्यूबिक किलोमीटर फॉर एक्सचेंजेस। हो क्या रहा है, ये ओशंस हैं स्टूडेंट। ये ब्लू कलर, इन द ब्लू कलर यू सी द ओशंस। ये वाटर है, ये क्या हो गया, वाटर इवेपोरेट हो रहा, ओशन इवेपोरेशन। ये आइस भी है, बहुत सारे देखा ना, आइस भी है यहाँ पर। और ये वाटर गया, वाटर वेपर हो रहा है एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर गोइंग टू द एटमॉस्फेयर। ये सन लाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है। और फिर ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, देख रहे हो क्लाउड्स। और ये क्लाउड्स क्या हुए, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ द रेन्स आर फॉर्म्ड, दिस लैंड प्रेसिपिटेशन। और ये प्लांट्स भी, यू नो, transpiration of plants also, you have studied transpiration of plants, evaporation of water is taking place student. Plants also are giving water, and ये rains हैं, ये ocean precipitation. So what is happening, then the water is falling back. This is a surface flow, rivers and lakes है, there is a soil moisture, ground water flow भी हो रहा है, देखो percolation, जो water it's percolating in the ground student. And then also all this cyclic process is going on. क्या प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस, जिसे वाटर साइकिल स्टूडेंट। वाटर साइकिल, राइट। So we can say student, water cycle is a way that water moves all around the earth. It never stops. It never stops student. This process is not going to stop. It does not have a beginning or an end. It is like a big circle. One point. This is never going to stop. It is going on. Earth has been recycling water for over 4 billion years. People perspire sweat and plants transpire. What we are doing? We are also releasing water student. Plants transpire. So transpiration is the process by which plants lose water out of their leaves. We already know about it. ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती जा रही है। What are the main parts of the question? What are the main parts or steps of water cycle? तो इसके क्या parts हैं स्टूडेंट? There are 4 main parts to the water cycle. एक तो evaporation है स्टूडेंट्स, convection है, precipitation है, and collection है. All these terms are important. We will explain to you in more detail. We are studying, whatever we study little more than what is information is given. Our purpose is to understand student. If we understand, then we will never have to do the mugging, और ये सिस्टम खत्म हो चुका है, मगिंग चलेगी ही नहीं, कहीं भी किसी एग्जाम में भी नहीं चलेगी, क्या करेंगे उसको। फर्स्ट स्टेप यू आर सेइंग इवेपोरेशन होता है स्टूडेंट। इवेपोरेशन इज व्हेन द सन हीट्स अप वाटर इन रिवर, लेक्स और ओशंस। देखो ये वाटर है आपका, तो ये सन आया डे टाइम पर,
what will happen student? Water will heat up. ये क्या करेगा? हीट करेगा. When the water will heat up, what will happen student? ये वाटर लिक्विड है स्टूडेंट, तो वाटर के वेपर्स बनेंगे and they will go. The water vapor or steam leaves the river, lake or ocean and goes into the air. तो ये एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट. तो ये एटमॉस्फेयर में चले गया वाटर. ये आपका ओशंस, लेक्स और रिवर्स हैं. ये लिक्विड है, यहाँ पे चले गया वेपर्स में. ट्रांसपायरेशन ऑलरेडी आपको पता है. ये क्या हो रहा है? ये आपके प्लांट्स और ट्रीज हैं स्टूडेंट. तो ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? ये भी दे रहे हैं वाटर. दे आर लूजिंग वाटर. तो प्लांट्स एंड ट्रीज, when they do photosynthesis process, what happens? You know, water is released. तो यहाँ से भी वाटर आ रहा है, इनके लीव्स पर ट्रांसपायरेशन हो गई. यहाँ भी सनशाइन कर रहा था. तो वाटर इवेपोरेशन हो रही है. एक तो ये हो रही है. इज इट क्लियर? इवेपोरेशन क्या होती है? केमिस्ट्री में वी आर यूजिंग अ लॉट ऑफ दिस इवेपोरेशन. और फिर क्या हुआ स्टूडेंट? फिजिक्स में यू हैव रेड समथिंग कॉल्ड कन्वेक्शन स्टूडेंट. तो कन्वेक्शन से क्या हो रहा है? कन्वेक्शन इन वाटर साइकिल इज व्हेन एयर नियर द सरफेस इज हीटेड. जो आपका सरफेस होता है स्टूडेंट, ये वाला सरफेस आप देख रहे हैं, हॉट बन गया. तो एयर जो सरफेस के पास है स्टूडेंट, डे टाइम पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हुआ? एयर हीट अप हो गई. ये सरफेस हो गया. तो एयर नियर द सरफेस, ये भी हीट अप हो गई, हीटेड. और जब हीटेड एयर होती है वो क्या करती है स्टूडेंट? Heated air will become lighter and it will do rises. ठीक है. So then rises, what will happen? It carries water with it. वाटर वेपर्स भी इसके साथ हैं. और जब एयर में जाएंगे, इन एयर, what will happen? It will get cold स्टूडेंट. और फिर ये लिक्विड में आ जाएगी. और लिक्विड से क्या बन जाएंगे? क्लाउड्स. इस प्रोसेस को व्हाट वी कॉल एट स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हुआ? कंडेंसेशन. वी रेड टू थिंग्स, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. देखो, ये हॉट सरफेस है, ये वार्म एयर है स्टूडेंट. ये कूल एयर आई और वार्म चले गई. तो वार्म एयर है ये, और कूल एयर आ रही है, वार्म एयर ऊपर जा रही है. तो ये कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है. हॉट एयर इज राइजिंग, कोल्ड एयर इज कमिंग एंड वाटर वेपर इज गोइंग अप. फिर कूलिंग हो रही है, कंडेंसेशन ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस टू फॉर्म द क्लाउड्स. तो सेकंड प्रोसेस क्या हुई स्टूडेंट? कन्वेक्शन. नोट डाउन दिस आल्सो. सर ये सोलर एनर्जी देखो क्या कुछ कर रही है. यस सन स्टूडेंट. तो डे टाइम पर देखिए क्या हो रहा है. व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? फिर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा प्रेसिपिटेशन होता है जी. हैव यू सीन प्रेसिपिटेशन इन केमिस्ट्री लैब स्टूडेंट्स? क्या देखा आपने? कोई सॉलिड सा सब्सटेंस टेस्ट ट्यूब में डिपॉजिट हो जाता है, 10th में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट. अब क्या हुआ? प्रेसिपिटेशन अकर व्हेन सो मच वाटर हैज कंडेंस्ड दैट एयर कैन नॉट होल्ड इट. तो आपने देखा था कि वी सेड कि होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट
In the atmosphere there are certain particles. Particles होते हैं, डस्ट के भी होते हैं और भी होते हैं. They act as a nucleus. जब मैंने रेन का दिखाया था, बताया था न्यूक्लियस, तो इसके अराउंड में क्या होता है कि ये वाटर कलेक्शन स्टार्ट हो जाती है. व्हाट हैपेंस? वाटर स्टार्ट्स कलेक्ट सराउंडिंग दिस न्यूक्लियस. तो वो क्या बनने शुरू हो जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है. और जब ये ज्यादा हो जाएंगे स्टूडेंट, व्हाट विल हैपन? व्हेन एयर कैन नॉट होल्ड, when air cannot hold it, what it will do? तो ये जो clouds हैं, clouds get heavy, they get heavy with water. लिक्विड, जो वाटर लिक्विड है ये हैवी हो गया, ज्यादा हो गया, तो फिर ये फॉल बैक करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेन. तो ये रेन्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स. इट विल बी रेन्स. हाँ जी सर. ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है. ओके. हाँ हाँ सर. ओके, ओके सर. ठीक है सर, ठीक है सर. ओके, थैंक यू सर. तो हुआ क्या स्टूडेंट? प्रेसिपिटेशन occurs when so much water has condensed, air cannot hold it, clouds get heavy and water falls back to the earth in the form of rain, hail, sleet and snow. So the water which evaporated is coming back. How? So what you have got? Precipitation. Third step student. ये देखो सारा ये जो आपके क्लाउड्स बने थे ऊपर स्टूडेंट, तो यहाँ पर रेन, ये रेन हो गई स्टूडेंट. रेन. तो ये वाटर कहाँ आएगा सारा स्टूडेंट? ये वाटर आ गया. अब लास्ट स्टेप में व्हाट विल हैपन स्टूडेंट? कलेक्शन और स्टोरेज. अब कलेक्शन और स्टोरेज होनी है स्टूडेंट. A lot of Earth's water does not take part in water cycle very often. अरे इतना सारा पानी है, सारा थोड़ी पार्टिसिपेट कर रहा है. Much of it is stored. Earth stores water in number of places. The ocean is the largest storage of water. देखो oceans आपके पास हैं, तो that is actually your largest storage of water. Largest storage of water. क्या ओशंस उड़ गए, खत्म हुए कभी? टेल मी. तो वाटर स्टोर हो जाता है. No, sir. तो ओशन इज द लार्जेस्ट. अराउंड 96% अर्थ वाटर इज स्टोर्ड इन ओशन. तो 96% जो है हमारा वाटर स्टूडेंट, दैट इज स्टोर्ड इन ओशंस. 96 is stored in ocean fresh water and is also stored in lakes, glaciers, snow caps, river below the ground water storage. ये कम होता जा रहा है ग्राउंड वाटर स्टोरेज, यू नो अबाउट इट. और ये लेक्स एंड ग्लेशियर्स जो हैं ये भी फ्रेश वाटर है, इनमें स्नो कैप्स, रिवर्स. लेकिन सबसे ज्यादा 96% ओशंस में. इसी में ही तुम सारे शिप्स चला रहे हो. इस पे बहुत सारी डिस्प्यूट चल रही है, यू नो. सी वो कौन सा सी है, यहाँ पर चाइना सी है, वहां पर भी प्रॉब्लम चल रही है. वो यूज कर रहे हैं बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन द सी. As our technology develops, student, as the knowledge develops, there is a lot of things in the sea. There are resources in the sea. People are using it. वो फिश का तो कर ही रहे हैं बहुत सारे. तुम्हें पता है उसकी भी बड़ी फाइट चलती है कई कंट्री में. अभी भी सुना होगा आप, जो फिशर वेयर इन फ्रांस और इंग्लैंड, देयर इज सम प्रॉब्लम बिटवीन दोस. तो जो टेरिटरी, ये वाटर है वो एक बहुत बड़ी सोर्स है. अर्थ जो में जो ओशन है वो लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ वाटर. Let us look at another aspect of what happens to water during water cycle. As you know, water is capable of dissolving large number of substances. As water flows through rocks containing soluble minerals, some of them get dissolved in water. Rivers carry many nutrients from the land to sea, and these are used by marine organisms.
अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि वाटर, यू हैव सीन वाटर इज अ वंडर लिक्विड, हमने पढ़ा था, डिड वी रीड इट स्टूडेंट? सब चीजें काम आने वाली हैं। तो वाटर इज अ वंडर लिक्विड, ठीक है। एज वाटर फ्लोज थ्रू, तो वाटर फ्लो करता स्टूडेंट, इट फ्लोज थ्रू रॉक्स कंटेनिंग, रॉक्स में क्या है, देयर आर सॉल्युबल मिनरल्स स्टूडेंट, और सम ऑफ देम गेट डिसॉल्व्ड, ठीक है, इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो रिवर्स कैरी मैनी न्यूट्रिएंट्स, इनके पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं, मैनी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो दे गो फ्रॉम लैंड टू सी, तो सी में क्या है, मैरीन ऑर्गेनिज्म है, तो they survive on them, they get student all these nutrients, so they provide nutrients to the marine organism. तो वाटर साइकिल आपने देखा कि हाउ यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट इट इज स्टूडेंट, कि कैसे चल रहा। एक और साइकिल आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन साइकिल स्टूडेंट। अब ये देखना स्टूडेंट, ये नाइट्रोजन साइकिल क्या है, व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल, व्हाट इज गोइंग टू बी द नाइट्रोजन साइकिल स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, it is a process by which nitrogen is converted into various chemical forms. आपको ये पता है कि ये जो नाइट्रोजन है स्टूडेंट, कितने परसेंट है एटमॉस्फेयर में, हाउ मच नाइट्रोजन इज देयर इन द एटमॉस्फेयर, 78%. and you know nitrogen is required everywhere student, it is being used in the soil by the plants, everything, you are aware of that, but that is not the nitrogen gas actually. And nitrogen gas is inert student, it doesn't react, so there are different forms of the nitrogens. So it is a process by which nitrogen is converted between its various chemical forms. There are different chemical forms of nitrogen, different chemical forms of nitrogen. The features of some of the important features of nitrogen cycle are student, nitrogen fixation. Atmospheric nitrogen must be processed to be used by plants. Tell me, can the plants use N2 directly? No, sir. No. Even I am inhaling nitrogen, it's just going inside my body and coming as it is. It's a, you know, nitrogen is inert gas, it is inert, it doesn't react so easily, and it cannot be used, I mean, by plants. So then what is the story, what happens then? The nitrogen fixation, assimilation, plants can absorb nitrate or ammonia. You know plants क्या क्या absorb करते हैं, nitrates होते हैं student. Nitrates क्या होते हैं, आपने बुक में देखा होगा, ऐसे लिखा होगा नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रेट है स्टूडेंट, सोडियम नाइट्रेट है NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रेट्स हैं स्टूडेंट। और एमोनिया का नाम आपने सुना है स्टूडेंट, एमोनिया NH3, एमोनिया एक NH3 आपने सुना है स्टूडेंट। ये आपको पता है यूरिया, यूरिया आल्सो कंटेन्स लॉट ऑफ नाइट्रोजन, तो सॉइल में फर्टिलाइजर के रूप में यूरिया बहुत यूज हो रहा है, यू नो अबाउट इट। तो assimilation, plants can absorb, plants cannot take nitrogen but they can absorb, he says, nitrate or ammonia from the soil,
ये कहां पर होगा? सॉइल में नाइट्रेट्स होंगे स्टूडेंट, और NH3 ये जब पानी में सॉइल में रहेंगे तो रूट हेयर्स से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रूट हेयर्स होते हैं ना प्लांट्स के, तो ये प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं स्टूडेंट ऐसे ये, तो वो क्या करेंगे? दे विल assimilate, is absorbed. It is first reduced to nitrite and then ammonia. फिर इसको क्या कर रहा है वो नाइट्राइट में और फिर अमोनिया में वो कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या बता रहा है? अमोनिफिकेशन। अब देर आर बैक्टीरिया एंड फंगी स्टूडेंट, बैक्टीरिया एंड फंगी है ग्राउंड पे, तो अमोनिफिकेशन प्रोसेस होगी। व्हाट इज दैट? अमोनिफिकेशन प्रोसेस। There is an ammonification process. In some cases, convert organic nitrogen into ammonium or a process called ammonification. इसे क्या बोलते हैं? ammonification. तो ammonification है बैक्टीरिया और फंगी, in some cases they will convert organic nitrogen into ammonium. So they will convert student organic nitrogen. Convert organic nitrogen into ammonium. Into ammonium. ये मिस नहीं है तुम्हें। फोर्थ क्या स्टूडेंट? नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्शन ऑफ एमोनिया टू नाइट्रेट। फोर्थ क्या है? नाइट्रिफिकेशन और कन्वर्शन ऑफ एमोनिया टू नाइट्रेट is performed primarily by soil living bacteria. क्या लिखा हुआ है? नाइट्रिफिकेशन और कन्वर्शन ऑफ एमोनिया टू नाइट्रेट। नाइट्रिफिकेशन, conversion of ammonia to nitrate is performed primarily by soil living bacteria. ये कौन सा है? सॉइल लिविंग बैक्टीरिया। सॉइल लिविंग बैक्टीरिया। सॉइल में क्या होता है? बैक्टीरिया होता है स्टूडेंट्स। यस सर। तो वो क्या करेगा? नाइट्रिफिकेशन, एमोनिया को कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रिफिकेशन करेगा टू नाइट्रेट, ठीक है, and other nitrifying bacteria. There are bacteria which are nitrifying bacteria. फिर denitrification is the reduction of nitrates back into largely inert nitrogen. फिर denitration, nitrification हो गई, nitrates are converted back to nitrogen, completing the nitrogen cycle which is performed by Clostridium and anaerobic conditions, in anaerobic conditions. तो ये हमारे अर्थ के अंदर स्टूडेंट ये जो बैक्टीरिया हैं ये भी बहुत ही यूजफुल काम कर रहे हैं। Let us see what we are trying to say. देखो यहाँ पे एक पिक्चर आई है, नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। ये आपके प्लांट्स हैं स्टूडेंट, प्लांट्स आर ईटन बाय द एनिमल स्टूडेंट। ये डेथ एंड डिके के बाद डिकम्पोजर्स आर देयर। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो डेड प्लांट्स और डेड डिके मटेरियल को खाते हैं स्टूडेंट, और दे विल प्रोड्यूस अमोनिफिकेशन। अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया प्रोड्यूस होता है और ये नाइट्रिफिकेशन हो जाती है, नाइट्रोजन पूल इन द सॉइल। ये सॉइल में नाइट्रिफिकेशन हो गई स्टूडेंट। अब ये डीनाइट्रिफिकेशन हो गई सॉइल में, तो वापस नाइट्रोजन बन गई इन द एटमॉस्फेयर। और ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन है, बायोलॉजिकली नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रही है, नाइट्रोजन पूल इन द सॉइल। और ये प्लांट्स को बर्न करते हैं तो भी नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर जा रही है। एनिमल्स जो एक्सक्रीशन करते हैं that is also going into the atmosphere. तो इस तरह से स्टूडेंट एक साइकिल प्रोड्यूस होता है। तो ये एक पिक्चर दिखाई गई है नाइट्रोजन साइकिल की। एक और पिक्चर देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर और आ रही है स्टूडेंट्स। What we are trying to say student, देखो it is so important. Nitrogen gas makes up to 78% of our atmosphere. Is it right? Yes sir. Nitrogen is also a part of many molecules essential to life called proteins. You have proteins.
are nucleic acids and some vitamins. They contain nitrogen. Nitrogen is found in other biological important compounds such as alkaloids and urea. इनके नाम आपने सुने हैं. Biological compound urea, you know, urea is a very good fertilizer. Soil में डालते हैं farmer. So nitrogen is also essential nutrient for all life forms, and the life would be simple if all these life forms could use atmospheric nitrogen directly. अगर हम सब atmospheric nitrogen को use कर लेते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं, right? We cannot. These living forms are not able to use nitrogen directly, but they are using all this. They are DNA, RNA, proteins, vitamins, student, urea, all these contain nitrogen. So they are different forms of the nitrogen, different compounds of the nitrogen, students. However, other than few forms of bacteria, life forms are not able to convert the comparatively inert nitrogen molecule into forms like nitrates and nitrites. तो हमें जरूरत पड़ती है स्टूडेंट, we need nitrates and nitrites. तो कौन कन्वर्ट करेगा? Only ये कह रहा है only few forms of bacteria. ये जो बैक्टीरिया के कुछ फॉर्म्स हैं, they can do it. So which can be taken and used to make required molecules. The nitrogen fixing bacteria may be free living or associated with some species of dicot plants. तो ये प्लांट्स के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं, डाइकोट प्लांट्स कहते हैं. मोस्ट कॉमनली नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स. जनरली प्लांट्स विच गिव अप पल्सेस. ये जो पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो रूट्स होते हैं स्टूडेंट, क्या होते हैं? रूट्स. ठीक है, रूट्स ऑफ लेग्यूम्स. इसके अंदर ये बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्सिंग करते हैं इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट नोड्यूल्स. अदर देन दीज बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया है स्टूडेंट, सारे नहीं, जो भी बैक्टीरिया काम करते हैं, those bacteria which are responsible for. The only other manner in which nitrogen molecule could be converted to nitrates and nitrite is by physical process. तो ये बैक्टीरिया से है, ठीक है, बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसे कि नाइट्रोजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स. और दूसरी फिजिकल प्रोसेसेस कौन सी? व्हाट आर द फिजिकल प्रोसेसेस? Physical processes, student, which can do the fixation of these nitrogen. The manner in which nitrogen is converted is by physical during lightning. आपने देखी है lightning होती है, जब रेन्स होती हैं, थंडर्स होती हैं, क्या होता है? हाई टेम्परेचर और प्रेशर बन जाता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो जाता है. तो अंडर दीज कंडीशन जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो रिएक्ट कर सकती है. क्या करती है? तो क्या बन जाती है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं. क्या बनाती है? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन किसमें है? एयर में. तो अब लाइटनिंग होगी तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन जाएंगी. क्या बनेगी स्टूडेंट? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. हो गया? तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन जाती हैं. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का क्या होगा? व्हेन दे विल रिएक्ट विद वाटर, दे विल डिसॉल्व इन वाटर. वाटर भी है ना हवा में, एयर में. Yes, वाटर भी है आपका. तो ये वाटर क्या करेगा फिर? वाटर और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बने, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बने, जैसे NO2, NO, इस तरह से बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के. तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे. तो ये क्या बनेंगे? एक नाइट्रिक एसिड्स होते हैं और नाइट्रस एसिड होते हैं, इस तरह से ये बनेंगे. और ये लैंड पे फॉल करेंगे विद द रेन. तो हमें क्या मिल जाएंगे? नाइट्रेट्स. और नाइट्रेट्स क्या होते हैं? NO3 माइनस वाले, ये वाले नाइट्रेट्स. और ये क्या बना लेंगे? नाइट्राइट्स. तो हमें नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स प्रोड्यूस हो गए स्टूडेंट. ठीक है, बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग. समझ में आ गया? बोलो. yes sir. अब देखो पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है स्टूडेंट्स. ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है. ये देखो, ये हो रही है लाइटनिंग. तो लाइटनिंग से मैं कह रहा हूं, ये लाइटनिंग दिख रही है. बहुत देयर विल बी लॉट ऑफ हीट एंड हाई प्रेशर विल बी प्रोड्यूस. तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है. और ये यहाँ पर जो है प्लांट्स की रूट्स जो हमने बताई हैं, ये लेग्यूम्स वाले, नेचुरली इनमें है बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. वो विट विल क्रिएट अमोनिया. अमोनिया विल, देयर इज ए बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो क्रिएट कर देगा नाइट्रेट. ठीक है, नाइट्रेट और NO2.
ये नाइट्रेट NO2, ये नाइट्राइट्स होती हैं और नाइट्रेट्स होती हैं, और एमोनिफिकेशन प्रोसेस होता है अमोनिया, ये भी NO2 और, तो आपको ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बन जाते हैं। और ये प्लांट्स जो है इनको यूज कर लेते हैं, असेमिलेट करते हैं, असेमिलेशन, ये नाइट्रेट्स को कौन यूज कर रहे हैं? प्लांट्स। और फिर डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है यहाँ पर इनके पास, कौन सा है? डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया क्या करेगा? ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देगा बैक टू नाइट्रोजन। देख रहे हैं? तो इस तरह से ये साइकिल चल रहा है, नाइट्रोजन साइकिल। क्या चल रहा है स्टूडेंट? नाइट्रोजन साइकिल। कैन यू सी इट? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। लेट मी गिव यू सम ऑफ द स्टेप्स। First I am saying ammonification. What is ammonification, student? Organic nitrogen from dead plant soil is converted to ammonium ions by mineralization. Mineralization is a decomposition of organic matters to ammonium, which is a usable nutrient ion. This is an inorganic form of nitrogen. Plants cannot absorb organic nitrogen. अभी आपको बताया plants जो होती हैं they cannot absorb nitrogen. ठीक है, ये नाइट्रोजन को absorb नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या होता है? डेड प्लांट्स, ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है, तो ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन है ये किस में कन्वर्ट हो रही है स्टूडेंट? अमोनियम। ठीक है, और अमोनियम, दिस इज मैनी डिफरेंट सॉइल ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व इन अमोनिफिकेशन। और सॉइल के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया और फंगी। तो ये मत समझो कि फंगी क्या काम कर रहा है, वो ब्रेड पे फंगी लगती है तो आपको पता है मत खाना भाई। समझ में आई? यस सर। तो ब्रेड वाली जो फंगी है वो ग्रीन ग्रीन कलर से जो दिखते हैं, और आपके टमाटर सफेद हो जाते हैं और आलू भी ऊपर से खराब होते हैं। कोई भी चीज आप लाते हो उस पर दिखता है व्हाइट कलर या कोई वो ग्रीन से कलर का, तो वो सब फंगी तो लग जाती है। तो हमारे बॉडी पे भी अगर स्किन पे लग जाए तो वो स्किन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये, लेकिन सॉइल ऑर्गेनिज्म ये ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर यूजिंग कार्बन एंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड एंड नाइट्रोजन इज रिलीज। देखो अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनियम आयंस फ्रॉम मिनरल्स टू नाइट्रेट आयंस वाया कीमियोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो अब यहाँ भी बैक्टीरिया काम कर रहे हैं। देखो these organism that aid in the nitrification process, Nitrosomonas and Nitrobacter, ये बैक्टीरिया के नाम है स्टूडेंट जो नाइट्रिफिकेशन में काम आते हैं। दे यूज एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन द कन्वर्शन ऑफ अमोनियम। तो आपका अमोनियम आयन को ये कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट NO2 माइनस में, एंड यूज कार्बन फ्रॉम CO2 इन द सॉइल। नाइट्रोसोमोना कन्वर्ट अमोनियम टू नाइट्रेट। तो ये जो प्रोसेस के लिए ये ऑर्गेनिजम्स यूज हो रहे हैं। नाइट्रा कौन सा? ये नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर स्टूडेंट, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये यूज हो रहे हैं दीज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कन्वर्ट अमोनियम टू नाइट्रेट एंड नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट नाइट्राइट टू नाइट्रेट। नाइट्रोबैक्टर ये क्या करता है? ये वाला नाइट्राइट कौन से है? NO2 माइनस टू NO3 माइनस में कन्वर्ट कर देता है। ये वाला देख रहे हो स्टूडेंट्स? pH has an impact upon this process. Optimum condition मतलब टेम्परेचर, adequate soil और exchangeable basic like calcium कंडीशंस भी होती हैं। सॉइल की कंडीशंस खराब हो जाएंगी तो ये प्रोसेस भी नहीं होगी। और डीनाइट्रिफिकेशन रेफर्स टू चेंज ऑफ वाया डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है नाइट्रेट टू फॉर्म नाइट्रोजन सच एज N2O। The process is rapid and large amounts of nitrogen are lost from the soil and end up in the atmosphere. This typically happens when there is a lack of oxygen in the soil, when the soil is too wet. As soil dried out, denitrification ceases. Conditions of denitrification. तो फिर आपका डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया भी है, वो क्या करेगा? नाइट्रेट टू नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देगा N2 गैस में स्टूडेंट वापस। तो ये कौन सा है? डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। हर एक के देयर आर कंडीशंस फॉर एवरीथिंग स्टूडेंट। टेम्परेचर, प्रेशर तो हमने वो भी मेंशन किया आपको। उसके बाद क्या आएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी। During nitrogen fixation, nitrogen gas is converted back to ammonium by bacteria in the soil or water, or by bacteria which have a symbiotic relation with plants such as Rhizobium bacteria on the roots of the legume. तो ये स्टूडेंट्स इसके बाद है immobilization। क्या होती है? It can be used at opposite of mineralization, refers to use or reuse of soluble ammonium by plants or microbes. Nitrogen is used
to form new organic compounds to be cycled again through mineralization and nitrification. This takes place in conjunction with ammonia, conjunction with ammonification. Immolation of organic matter is opposite to mineralization. In immolation, mineralized nutrients are incorporated into organic molecules within the living cell. Student, the process is very important because it relocates mineral nutrients into pools when that have relatively rapid turnover time, making them available to plants and preventing the loss by leaching. Plants are generally not efficient at competing with microorganisms for mineral nutrients in the soil. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. यू हैव सीन हाउ द नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस. तो ये अमोनियम फिक्सेशन क्या हुआ स्टूडेंट? दिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच सर्टेन क्लेज bond ammonium so tightly between mineral lattices that it is not exchangeable or available plants for uptake. It is a common vermiculite or it occurs only in small amount. तो ये सारा जो भी हमने मैकेनिज्म भी बताया आपको, व्हाट वी हैव डिस्कस स्टूडेंट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. Important as student, very important topic. So we have given you a lot of details about this. So you have seen student two important cycles. One is a water cycle and second is a nitrogen cycle. ठीक है students? Okay, I hope you have enjoyed the lesson and a lot of information has been provided. Then we end up the session here. We will see you in our next class and you will get recorded videos available. We have given you a lot of material to show how all these processes take place. Okay, then bye bye. Thank you, sir.